ओके, आज वी कैन गो फॉर जियोमॉर्फिक प्रोसेस का थर्ड क्लास है। इसमें वी विल स्टडी अबाउट मास वेस्टिंग और मास मोमेंट्स। लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेदरिंग। पहले जो लैंडफॉर्म एंडोजेनिक का जो लैंडफॉर्म था वो कैसे बनाएगा, दैट वी हैव स्टडीड। लेटर ऑन एक्सोजेनिक फोर्स, इसमें फर्स्ट प्रोसेस है वेदरिंग। जो पत्थर जो रॉक crystals that has been made by the endogenetic force that will undergo certain kind of geomorphic process, that is called exogenetic processes. When it comes to the surface, the prime or the first process that the rock is undergoing is a weathering process. So after weathering, this should be moved, this should be taken away to some other places. Then only new landforms will form. For that, there required some sort of movements. That sort of movements we usually say it as mass movements. Today we are going to discuss on this particular topic. तो इसमें हम बोला है मास वेस्टिंग, तो साथ में ब्रैकेट में दिया है मास मूवमेंट. सो व्हाट इज दिस वेस्टिंग? Actually, the disintegrated and fragmented rock materials due to mechanism of weathering process. That means the resultant material or the outcome material from the weathering is, we will usually call this as rock waste or rock wasting. तो ये जो वेस्ट है ना, वो मास वेस्ट, इसे बोलते हैं मास वेस्टिंग. जो प्रोसेस का ट्रांसपोर्टेशन करने से जो वेस्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ द वेदरिंग प्रोसेस, उसको तो ट्रांसपोर्ट करेगा, उसका तो मूवमेंट होगा, उसे वी विल से इट एज रॉक वेस्ट, एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड रॉक वेस्टिंग. So what is this mass wasting? The movement of this rock waste down the slope is called mass movement or mass wasting. तो पहले rock waste है, that is being created by weathering process. This rock waste को एक जगह से दूसरे जगह पर लेके डाल देगा. That process, that movement is we usually termed as mass movement or mass wasting. And the main factor behind this mass wasting is the gravitational force, gravitational attraction of the earth. जो ऊपर से नीचे जो ब्लॉक है, रॉक का ब्लॉक है ना, ये तो रॉक का जो वेस्ट है, उसको तो ऊपर से नीचे लेके आ जाएगा. एंड दैट फोर्स इज मेनली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. वो काम करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड आल्सो it depends upon the position of rock. Position means अभी इधर देखो, ऐसा होगा स्लोप, तो एक पत्थर इधर है, तो इसका मूवमेंट थोड़ा धीरे से होगा. लेकिन सोचो द रॉक वाज हियर, ये इस जगह पे है, तो बिकॉज ऑफ द पोजिशन इट कैन बी इजिली पुल डाउन, या तो इसको इजिली इसको तो नीचे लेके आ सकता है, because it depends upon his position also. And ये जो नीचे लेने के लिए एक तो फोर्स चाहिए. The major force behind this process is the gravitational force. When we will study about the erosional process or transportational process or even the depositional process, there will be certain agents like running water hoga, glaciers, moving ice hoga, that is glaciers, and the moving air, that is wind hoga, ye kuch cheez hoga. There will be certain kind of agents that transport. But in this mass movement, the main acting agent is the gravitational force. And what this water ice jo bhi ho, what they are doing, they are supporting. They will have to change the velocity, that they will influence the velocity of the movement. But the main force is gravitational force. Even without the help of this water, ice or air, the rock mass will fall down because of the gravitational force. लेकिन
ये जो वाटर आइस है इसका तो सपोर्ट नहीं चाहिए, इसका तो सपोर्ट नहीं होने से भी करेगा, बट दिस विल एक्ट एज ए स्टिमुलेटर, ये स्टिमुलेट करेगा. दिस विल आल्सो हेल्प द ग्रेविटेशनल फोर्स टू टेक द रॉक मास और रॉक बेस टू ब्रिंग डाउन. ये जो एक्युमुलेशन है, जो एक्युमुलेशन विच इज ये जो मास मूवमेंट से, मास वेदरिंग से ये रॉक को बहुत मल्टीपल पार्ट्स बन जाएगा. वो मल्टीपल पार्ट बिकॉज ऑफ दिस मास वेस्टिंग इट विल ब्रिंग टू द डाउन स्लोप, डाउन हिल में लेके आएगा. एंड दैट काइंड ऑफ वेस्ट or that kind of material we will usually call this as talus. We will call this as talus. ये नाम याद रखना है. The accumulation of fallen material at the base of cliffs hills due to weathering and mass wasting is called talus. ये नाम याद है. This is a depositional feature. जो अभी this is the hill slope and अभी आप देखने से यहाँ bird ऐसा ऐसा पत्थर का pieces होगा. So that kind of depositions made during the time of mass wasting, we will usually say it as talus. And mass movement can be very dangerous. Why? Because they can happen at very quick and involves entire hill. अभी ऐसा है, mass movement कुछ time में तो slow process होगा, that will not be that much dangerous, but sometimes it will be very quick. जैसे landslides होता है, we can't predict it always. At some points, we may not expect that kind of movement. Suddenly, there will be quick movement of the land mass or rock mass to suddenly move hoga. So that will cause a lot of damages. So that is the basic things that you want to understand regarding the mass movement. So mass movement is the movement of rock waste. Rock waste है जो disintegrated and fragmented piece of rocks created by weathering. And ये movement का जो force है, that is gravitational force. Even without the support of water, glacial or wind, they are the transportation. They are the agents of gradation. वो gradation का agents है. Without the help of these agents also, the gravitational force can bring the mass down slopes. वो लेके आ सकता है. And the depositional feature generated during the mass waste is known as the talus. And how these are very dangerous movements. A mass movement are sometimes, not always, but on many occasions that will be very dangerous because it can happen at very quick succession में ये हो सकता है. And also it can include, ऐसा एक छोटा पत्थर नहीं है, पूरा हिल को लेके ये तो नीचे आ जाएगा, पूरा हिल का एक साइड को लेके ये तो नीचे आ जाएगा. तो जो भी इंसान है उसके अंदर नहीं है, तो जो भी एनिमल्स है इसके अंदर, वो इसके बीच में फंसेगा. They can't suddenly escape from that. Even this will within seconds they can happen. So what are the types of mass wasting? तो मास वेस्टिंग बोल दिया है, मूवमेंट है. अर्थ जो अर्थ का वो पत्थर का वो वेस्ट है, उसका मूवमेंट है. तो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट्स, इसके वी हैव क्लासिफाइड द मास वेस्टिंग इनटू डिफरेंट क्लासेस. So first classification is based on direction. First one is vertical mass movements. Second one is lateral mass movement, and the third one is diagonal mass movement. Vertical movement ऐसा होगा, एक region होगा यहाँ से direct नीचे. This will be a cliff side. ये तो the vertical wall-like inclination is usually we will say it as cliff. तो ऐसा एक होगा, यहाँ पत्थर होगा, ये तो suddenly collapse होके नीचे गिरेगा. So that kind of movement is called vertical movement. Then second one is lateral movement. तो slope बहुत कम हो, slope है लेकिन बहुत है, तो धीरे धीरे ये पत्थर ऐसे मूव होकर आ जाएगा. That is in a lateral, almost horizontal, but still there is small slope, very small slope होगा. That kind of movement we will usually say it as lateral mass movements.
And the third one is diagonal mass movement. Diagonal means aisa, not so vertical, not so horizontal. It will be like this. So most of the cases we can expect a diagonal mass movements. अभी पत्थर यहाँ है तो यहाँ पत्थर होगा, ये नीचे रोल होकर यहाँ गिर जाएगा, नीचे ऐसे गिर जाएगा. So it can be less diagonal होगा, ऐसा slopy surface भी होगा. It can be almost steepness इसका ज्यादा भी हो सकता है. So there are different diagonal movements. Sometimes it will be almost vertical, sometimes it will be almost horizontal, and sometimes it will be moderate slopy surface होगा. तो इधर से ये जो नीचे आएगा, that we will usually say it as diagonal mass movement. So there is, based on the direction, there is three kind of movements. One is vertical mass movement, second one is lateral mass movement, and third one is diagonal. Lateral means horizontal, vertical, perpendicular, diagonal, cross. So aisa. Then second type of movements, this is very important. So kya hai? First one is falls. Second one is slides. Well, third one is slumps. Then creeps, flows. Yes, sir. These are the type of mass movement based on the movements. जो rock का जो ऐसे move होता है, based on that we have classified this into even more than this. If you say topples है, ऐसा बहुत कुछ movements है इसके अंदर, but main movements are falls है, slides है. अभी landslides वो सुना होगा, rock falls. तो rock falls ऐसा जो movement है, based on that we can divide the mass movement. So first is fall. A fall or topple. You want to remember this word. I will say what is that. Happens when the rocks and other sediments falls through the air and land at the bottom of the slope. I say usually that happens in vertical. I say vertical slope होगा तो यहाँ पत्थर है तो यहाँ से direct ये तो नीचे आ जाएगा. So that kind of movement usually we will say it as falling. अभी यहाँ rock छोड़ो, यहाँ एक तो मिट्टी है या इतना सा मिट्टी है, ये तो यहाँ ये इस एरिया कोलाइड हो गया तो यहाँ का जो मिट्टी है जल्दी नीचे आ जाएगा, ऐसे फॉल हो जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड फॉल. एंड नेक्स्ट वन इफ यू लुक यू कैन सी टोपल. टोपल ऐसा है, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप. डायरेक्ट फॉल है इसका मूवमेंट, तो इसका स्टेप बाय स्टेप है. ये तो ऐसा फर्स्ट यहाँ से यहाँ जंप करेगा, यहाँ से फिर यहाँ जंप करेगा. Almost like falls, but it will be in step-by-step way. That kind of movement we will say it as topple. Almost same like a fall. So falls or topple happens when the rock and other sediments. It is not limited to a particular rock mass. It can be gravels, it can be sand, it can be soil, it can be any kind of debris. Jo bhi ho, if it falls directly in the air and comes to the bottom, we will say it as falls. And if there is if the fall is just like a step-by-step process, then we will say it as topple. ये नाम दोनों याद रखना है, fall and topple. Then slide. Slide means अभी slide से एक तो ऐसा slope है तो यहाँ से slide होके just along the surface को ऐसे frictions के वजह से ये तो ऐसा slide होके move होकर नीचे आएगा. So that kind of movement is called slide. A slide happens when a section of soil, rock or debris suddenly gives a way to move down a slope. Slope में जो नीचे आएगा, ऐसे air में नहीं है, जो इसमें erode होकर यहाँ touch होकर पूरा area में touch होकर ये तो move करके नीचे आ जाएगा. So that kind of movement is called sliding. The material moves as a single mass along a slippery zone. जो slippery होगा ऐसा एक तो slope है तो gravitational attraction साथ होगा, उसके साथ क्या है ये अभी clay content होगा इसमें, नहीं तो पानी का कुछ. I said these agents can accelerate, these agents can support mass wasting. अभी यहाँ slippery नहीं है तो भी ये पत्थर नीचे आ जाएगा, but if it is slippery it will come bit faster. So that kind of movement we will usually say it as sliding. And the third one is slumps.
तो moves material as a large block along a curved surface. Slumps often happen when a slope is undercut with no support for overlaying materials or when too much weight is added on the unstable slope. ऐसा है। इसके लिए I will make here. सर हाँ, ये बेस्ड ऑन डायरेक्शंस का ना, जो वर्टिकल मास मूवमेंट है, लेटरल मास मूवमेंट, उन लोग का थोड़ा सा डेफिनेशन होने से ठीक था सर। वो इसका तो डेफिनेशन चाहिए क्या? डेफिनेशन की ये आइडिया है ना, वही आइडिया है इसमें। वो डेफिनेशन ऐसा नहीं है इसके लिए ना, उसका भी डिस्क्रिप्शन ही होगा, वो हम ऐड करके देगा। ओके सर थोड़ा सा लिख के देने से, क्योंकि मैं, क्योंकि अलग नोट्स कुछ भी नहीं है, हम ये इसी से देख रहे तो ना सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी। तो यह है स्लम्स। तो स्लम्स ऐसा है, देयर इज ऐसा एक स्लोप है, तो इसमें यू कैन सी ए कर्व्ड सरफेस। तो यहां से ये इस पोर्शन कर्व शेप में ये तो कोलाइड होगा एंड इट विल फॉल्ट ऐसा नीचे आई। तो एक तो कर्व्ड सरफेस होगा, तो इसका तो अंडरकट होगा, ये जो नीचे का एरिया है वो अंडरकट होगा, तो ये स्लाइड होकर ये तो नीचे आ जाएगा। ये इतना सा मिट्टी जो ऊपर था वो स्लाइड होकर ये तो नीचे आ जाएगा। सो दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड स्लम्प्स। एंड फोर्थ वन इज creeps. Creeps is a very slow movement that goes on for years. नहीं, ये तो centuries, बहुत hundreds of years लेगा इसका मूवमेंट। तो मोस्टली इट हैपेंस इन ए ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, लैटरल और हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा। ये धीरे इसका तो मूवमेंट हो रहा होगा, लेकिन इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। जल्दी तो समझना मुश्किल है। जहाँ का अभी ट्रीज है, तो ऐसा वाला ट्रीज यूजुअली एट दिस पॉइंट वेयर देयर इज क्रीपिंग हैपेंस, इसका तो शेप ऐसा होगा, ये बॉटम एरिया थोड़ा कार्व्ड होगा। तो वो देखने से वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस एरिया हैज सम क्रीप्स, और क्रीप्स टाइप मूवमेंट यहाँ हो रहा है। तो देखने में उतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, वो धीरे धीरे बिकॉज ऑफ दिस वो स्लोप बहुत कम है। तो यहाँ से जो पूरा एरिया है वो अर्थ मटेरियल है, सोइल है जिसका ऊपर, वो धीरे धीरे नीचे आएगा, ऐसा धीरे धीरे नीचे आएगा। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ओनली बाय ऑब्जर्विंग सर्टेन फीचर्स। अभी कुछ चीज, अभी यहाँ एक रोड था, यहाँ एक पत्थर था, नहीं एक ऐसा आयरन रोड रख दिया था इस पॉइंट में। तो अभी 10 इयर्स के बाद जब देखा तो ये इधर आ गया। सो दैट तो उसका समझ, इसका मतलब है ये रोड यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ का जो मिट्टी है दैट हैज मूव्ड टू दिस प्लेस। तो ऐसे ही इसको तो समझ में आएगा। तो बेसिकली व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड द क्रीप्स, इट इज लाइक दैट। यहाँ एक तो स्ट्रेट लाइन है, वो यहाँ एक पेड़ है, वो पेड़ ऐसा कर्व शेप में होगा इसका बॉटम एरिया बिकॉज ऑफ दिस क्रीपिंग। देन कम्स द फ्लॉस। So flows are mixture of water, rocks and sediments. They move very quickly. So flow means there will be the presence of water होगा। जो debris है, debris means the sands material, जो sands, rocks, ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा materials है, वो सब क्या होगा, पानी होगा। वो इसका मूवमेंट नीचे आ रहा है, उसी टाइम देयर विल बी सपोर्ट फ्रॉम दी वाटर का भी, पानी का भी सपोर्ट होगा। तो ये विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर इट विल मूव डाउन क्विकली, तो जल्दी है तो नीचे आ जाएगा। सो दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लॉस। सो ये सब याद रखना है। फॉल्स, व्हाट इज अ फॉल और टॉपल, देन स्लाइड्स, देन स्लम्प्स, देन क्रीप्स एंड द फ्लॉस, ये सब याद रखना है। these are the movements, mass movements based on टाइप ऑफ मूवमेंट, कौन सी टाइप का मूवमेंट है। स्लो है, स्लाइडिंग है, फॉल्स है, स्लम्प्स है, क्रीप्स है, टॉप है, फ्लॉस है, ये सब। अभी इसमें देखने से यू कैन अंडरस्टैंड द फॉल।
तो यह है ऊपर से यह पत्थर फॉल होकर नीचे आ गया है, दिस इज फॉल्स। तो ये क्या है, दिस इज एक्चुअली स्लाइड। यहाँ से दिस इज द एरिया इन केरला वेयर कावलापारा रीजन लास्ट टाइम लैंडस्लाइड हो गया था। इधर पूरा इधर बहुत कुछ फैमिलीज था, इसे वाला सेटलमेंट इधर भी था, तो पूरा लोग इसके अंदर फंस गया है, बहुत लोग मर गया है इसके नीचे। तो ऐसा वाला है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ से कोलाइड होकर ये इधर आ गया, यहाँ से लैंड स्लाइड्स हो गया, स्लाइड होकर ये पूरा मिट्टी स्लाइड होकर नीचे आ गया है। देन दिस इज एक्चुअली द एर्थ फ्लो। फ्लो मीन्स यहाँ से जो नीचे आ रहा है विथ द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर इसके साथ पानी भी है, वो पानी के सहायता से हेल्प से ये जो डिब्रिस था, जो दैट बिकॉज ऑफ द वेदरिंग जो डिब्रिस बनाया था उसको तो लेके नीचे आ रहा है दिस वाटर। एंड अगेन दिस इज क्रीपिंग। अभी ये देखो, ये वॉल ऐसा था, स्ट्रेट था, तो यहाँ सोइल अभी ये तो क्रीप हो रहा है, तो मूव हो रहा है यहाँ सोइल। तो यहाँ एक तो बेंड, इफ यू लुक हियर यू कैन सी ये फेंस तो ऐसा बेंड हो गया है बिकॉज ऑफ दिस क्रीपिंग, लैंड का क्रीपिंग से। तो ऐसा ऐसा एविडेंस देके ही we can say that there is some kind of creeping happens, but because that is that much of a slow process. Again, this is called ये हो गया, this is called slums actually, slums है। तो इधर if you look here, सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ कुछ हो गया ना। अभी देख सकता है ना? जी ओके। तो यहाँ ऐसा है, अभी हम बोल दिया है कर्व शेप में ऐसा, एक तो कर्व शेप होगा, तो यहाँ से जो मिट्टी है ये जो एरिया का वो नीचे गिर गया है, so there will be a curve shape movement, so this is called slumps। जो ऊपर अभी if you look here you can see upper portion में मिट्टी है, रॉक है इसके ऊपर, लेकिन नीचे का जो कर्व पोर्शन है वो कर्व होकर यहाँ से ये निकल गया है जो एरिया, तो that is called slumps। So these are the major movements based on the these are the based on types, these are the major mass movements। Then based on velocity of movements, velocity means speed of the movement से we can divide the area into slow movements then rapid movements। दो है, स्लो मूवमेंट्स है देन रैपिड मूवमेंट्स है। स्लो मीन्स वेरी स्लो, जैसे स्लोप बहुत कम होगा तो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, अभी क्रीप के बारे में हम बोल दिया है, तो दैट मूवमेंट हैपेंस फ्रॉम अभी इयर्स लगेगा, एक दिन दो दिन से नहीं है, वो होगा अभी 10 years 100s of years to move। that kind of movement we will say it as slow movement। then rapid movement or quick movements, that is अभी लैंडस्लाइड होता है जहां पे अभी वेरी स्टीपी स्लोप में जो भी होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ ज्यादा होगा, तो एक क्विक विद इन सेकेंड्स और विद इन मिनट्स this will happen। that kind of movements we will say it as a rapid movement। so based on velocity there is two kind of movements, one is slow movement, another one is rapid movements। so and based on the important materials in mass movements okay, ये क्या है that we can discuss। so first based on velocity, based on the type and based on the direction we can divide the mass movements based on direction, vertical, lateral and diagonal, then based on type falls, slides, slumps, creeps and topple, and based on the velocity there is slow movement and rapid movements। then important materials in mass movements वो देख के what are the mass movements है based on important materials that is being moved। वो रॉक का मूवमेंट है,
वो बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंट मटेरियल तो बोल नहीं किया है, इसके वजह से है. So this is another type of movement. First one is rock, second one is earth material, and third one is debris. अभी rock fall, rock slide ये सब बोलेगा ना, तो that is based on the material. What kind of material is moving? Second one is अभी rock is the large rock masses that is being moved. अभी ये जो फोटो है इसमें you can see पत्थर है, बड़ा बड़ा पत्थर है. So that is rock. That is the material carrying. The second one is earth material. That is fine grained materials. Like अभी soils है, sand grains है, ये सब चीज बहुत छोटा होगा ये जो चीज है. That is called earth material. Then debris. Debris is between rock का size नहीं है और earth material का size भी नहीं है. इन दोनों के बीच में जो size का material है, that we will say it as debris. Mostly it is bigger than the sand. जो sand grains है उससे bigger होगा and less than वो बड़ा rock mass से छोटा होगा. तो it includes छोटा सा पत्थर, rocks है, stones है, boulders है, ये सब ये based on the size. ये तो इसका तो size कम होगा and it will be bigger, lesser than rock, and it will be smaller than, sorry, it will be smaller than rock and it will be bigger than earth material. That is soil sand से bigger है, rock से नीचे है. So that are the major materials that is being carried out. Earth material, second one is debris and rock. If you add all this, you can get what kind of mass wasting is happening. So in general terms, if you look, these are the major terms you want to understand. इसमें बोलने से first material rock है, second one is debris and third one is earth material. Earth material सबसे छोटा, debris बीच में and rock bigger material. तो इसका क्या क्या मूवमेंट है? fall है. तो fall जैसे होता है that is in a vertical area. Vertical area में इसका तो ये हो रहा है fall. अभी rock slumps भी ऐसा rock का ऐसा एरिया कर्व्ड एरिया होगा, उधर से वो नीचे जाएगा, तो इट इज rock slumps. Again rock slide. जो जनरल स्लोप है, ऐसा स्लोप है, उसमें जो रॉक ऐसे रोटेट होके धीरे से नीचे आ जाएगा, not that much slow. That kind of movement we will say it as rock slides. Then rock topples. So step by step movement of rock, that is called rock topples. Then rock spreads. तो ये based on the movements हम पहले से जो बोल दिया है, ये सब मिला के we can classify the entire movement. अभी पत्थर का movement है तो it is based on material. जो fall है that is based on type. कौन सी type का movement है? तो ये पत्थर का fall है, ये rock fall है. That happens in which area? Usually that happens in vertical area. तो vertical और vertical ये है ना, ये vertical area में इसका movement होगा. Then slumps भी ऐसा है, almost vertical to diagonal area में इसका movement होगा. Rock slides भी ऐसा है, rock topples भी ऐसा है. Mostly topples and falls happens in vertical area. Then slumps and slides happens in diagonal area, and this rock spread, this happens mainly in lateral or horizontal area में इसका होता है. तो all this, ये जो पहले ऊपर में जो बोल दिया, ये मिला के we can classify the rock mass, we can classify the major mass movements. तो there's debris है जो पत्थर साइज का, बड़ा पत्थर साइज नहीं है, मीडियम साइज का पत्थर है, रॉक्स है, पेबल्स है, कोबल्स है, ग्रेन्स है, ये सब मिला के जो भी हो वो चीज का मूवमेंट. तो ये भी फॉल होगा, फॉल होने से वर्टिकल है, डेब्रिस स्लम्स होगा, डेब्रिस स्लाइड होगा, डेब्रिस टॉपल्स होगा, डेब्रिस फ्लो होगा एंड डेब्रिस स्प्रेड होगा. इफ यू लुक हियर यू कांट सी रॉक फ्लो. रॉक तो पत्थर है, पत्थर में पानी इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो पत्थर छोटा छोटा पत्थर है ना, ये तो मिट्टी है, तो वो पानी से मिला के नीचे आ सकता है. लेकिन when it is a bigger rock mass, पानी को ऐसे उसको उड़ा के लेके नहीं आ पाएगा. So there is no rock flow. There is no rock flow. Only debris and earth materials can flow.
ये चेंजेस अभी डिवीजन में लिखते समय कभी भी ये रॉक फ्लो कभी भी मत लिखो। देन अर्थ फॉल और स्लम अर्थ मटेरियल वो जो बहुत छोटा ग्रेन साइज का है, लाइक सैंड्स है, सोइल्स है, ह्यूमस है, ये छोटा छोटा चीज जो भी हो उसका मूवमेंट वी विल से इट एज अर्थ मटेरियल। सो देयर इज अर्थ फॉल, अर्थ स्लम्स, अर्थ स्लाइड्स, अर्थ टॉपल्स, अर्थ फ्लो एंड earth spread. Yes, Sabchis. Only in the case of rock there is no rock flow. बाकी सब में सब तरीके का movement होगा, and that's based on slopes, mainly slopes, that is the position of the rock, and second one is the gravitational attraction. तो slope ज्यादा है, gravitational attraction ज्यादा होगा. slope कम है तो gravitational force कम होगा. That is how it is managed. Then another one is movement based on dryness and wetness. ज्यादा wetness होगा नहीं, ये तो movement of dry material and movement of wet material. इसमें ये नाम याद रखना है, that is slurry flow. Wet flow को we will usually say it as slurry flow. So mass movement of wet material is known as slurry flow. And if the material is wet and slow, wet है and धीरे से है, so इसे बोलेगा solifluction. ये नाम याद रखना है. What is solifluction? ये भी पूछ सकता है what is a solifluction. तो जो slurry flow है that is the wet flow है, and that is even if it is slow, if the process is slow, we will say it as solifluction. The second one is slurry flow से second one है, it is slurry flow में all the material is wet होगा, इसमें पानी water content होगा, and if it is fast then we will say it as mud flow. ये बहुत dangerous है, अभी इसमें फंसेगा तो we will certainly die, because if we are falling in this mud flow, वो पानी भी इसके साथ होगा, clay content भी ज्यादा होगा, तो we can't move from that particular place. उधर से move करना बहुत मुश्किल है, तो ऊपर जो भी material आएगा वो हमारे ऊपर ही आ जाएगा. So mud flow is very dangerous kind of mass movement. So slurry flow based on wet flow से दो तरीके का है, based on its velocity. So wet flow, if it is slow, we will say it as solifluction, and wet flow, if it is fast, we will say it as mud flow. Again, if it is dry, we will say it as granular flow. If the material is dry, we will say it as granular flow, and तो इसमें एक साइड में होगा dry. If the material is dry and the movement is slow, then we will say it as creep. If the material is dry and the movement is slow, it is creep. And if the material is dry and the movement is fast, then we will say it as debris avalanche. अभी आप mostly we will say that in glaciated area में, नहीं ये तो ice capped area में mostly we can see avalanche. वो क्या है, जल्दी एक सेकंड में पूरा ice ऐसे इरोड होकर आ जाएगा, फ्लो होकर आ जाएगा. तो दैट काइंड ऑफ मूवमेंट वी विल से इट एज डेब्रिस avalanche. ड्राई एंड फास्ट है तो avalanche, ड्राई एंड स्लो है तो क्रीप, वेट एंड फास्ट है तो मड फ्लो, एंड वेट एंड स्लो है तो solifluction. ये नाम याद रखना है. मड फ्लो याद रखेगा, क्रीप तो स्लो प्रोसेस है तो क्रीप इट इज वी कैन इजीली राइट, बट ये solifluction you want to remember this name. And slurry flow, what is a slurry flow पूछने से you have to understand that if the material is wet and it is if the material, the mass movement is wet, we will say it as slurry flow, and if the process is slow, we will say it as solifluction. And fast, mud flow. Then dry and slow, creep, and dry and fast, debris avalanche. So next one, what are the factors? अभी बोल दिया है gravitational force is the
फोर्स बिहाइंड मास मूवमेंट। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होने से भी अभी बहुत चीज उधर ही है। अभी एक पत्थर आप देखा, बहुत पत्थर है जो साइड में होगा, स्लोप में होगा, वो उधर बहुत साल से उधर ही होगा, दैट विल नॉट बी मूव्ड। वो उधर पहले से था, अभी भी है, बाद में भी ऐसा होगा। ये कैसे होगा? इफ देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स, देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, लेकिन ये नहीं हो रहा है। व्हाई? बिकॉज there are the factor which hold this particular rock debris or earth mass is the friction. अभी एक तो स्लोप है, यहाँ एक पत्थर है, देयर विल बी ग्रेविटेशनल पुल होगा, लेकिन ये जो रॉक मास है उसका अपना सा एक फ्रिक्शन है इधर, यहाँ इस देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ फोर्स अप्लाई करेगा। That kind of force we will say it as friction. So mass movements happens when the stress or the gravitational force exceed this friction. जो ये friction है वो friction को exceed होने से there will be movement. Otherwise the rock will keep its position. वो जो पहले position था उधर ही बैठेगा। जब when there is some condition or when there is some situation where the gravitational force exceeds this frictional force, then there will be mass movement. So major factor which cause mass movement is shearing force, that is stress. Shearing force, that is stress happens. अभी slope area है तो shearing gravitational force ज्यादा है, तो that is the shearing force. जो slopey area में shearing force से जो that is called gravitational force, shearing force. And the resistance of the material to shearing force. जो gravitational force है उसको resist करने के लिए that particular material, rock हो, debris हो, earth material जो भी हो, उसका अपना सा एक तो force है, that is frictional force. And this factors of mass movements में तो क्या है? shear, जो force of shearing is equal to strength of the shearing resistance of the material, that is friction. Force of shearing resistance to the material, तो जो अपना से जो भी shearing material को resist करने का power है, that is usually we will say it as frictional force divided by magnitude of shearing force. Magnitude वो pull कर रहे हैं, ये इसको तो नीचे जो gravitational force है pull कर रहे हैं, उसका force, that is usually gravitational force or the stress force. So when friction exceeds stress, there will not be any kind of movement. But if the stress exceeds the frictional force, then there will be mass movement. So there are certain factors which increases the shearing strength. Increases the shearing, जो ये shearing strength को ज्यादा करने से we know that there is mass movement. तो इसके लिए क्या क्या है? One is removal of lateral support. ऐसा एक slope था तो यहाँ फ्रिक्शन था, तो क्या हो गया? ये जो यहाँ बैठने का जो एरिया ये तो निकाल दिया इस एरिया को, तो क्या होगा? इसका फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, तो ये तो जल्दी नीचे आ जाएगा। ये नीचे का जो पत्थर, ये मिट्टी जो गया तो ये जल्दी नीचे आ जाएगा। तो रिमूवल ऑफ लैटरल फोर्स, दैट इज कॉल्ड that is one of the factor which increases the shearing. Then that is undercutting. If you look here, you can see. Then angle of slope. Steep slope है तो increase the shearing strength. तो pull ये तो move करने का force तो ज्यादा है. If it is diagonal और gentle slope है, फिर या इतना सा ज्यादा नहीं होगा, फिर भी होगा. And third one, if it is lateral, तो ये पत्थर इधर ही होगा, इसका तो मूवमेंट कभी भी उतना ज्यादा नहीं होगा. So that depends upon the angle of slope. Then surcharge, that is load of slope, weight of water, snow, vegetation, accumulation of talus. Talus बोल दिया है जो deposition है bottom area में, that is called talus. तो ये सब का अभी ये surcharge, ये load slope में load ज्यादा हो गया. अभी sometimes यहाँ एक स्लोप है तो स्लोप में
इतना सा मिट्टी है स्लोप के अंदर, ये सरफेस है, सरफेस से इतना बॉटम तक मिट्टी है, तो ये मिट्टी इधर ही होगा। लेकिन व्हेन देयर इज रेनफॉल, ज्यादा रेनफॉल हो गया तो ये मिट्टी का वेट ज्यादा होगा, तो दिस विल come down easily. That is why landslides usually happens when there is high rainfall. जो rainfall है यहाँ hilly region में landslide क्यों होता है? Because if there is rainfall, ज्यादा rainfall है तो मिट्टी, जो मिट्टी है वो मिट्टी का वेट ज्यादा हो जाएगा, उसके ऊपर लोड बढ़ जाएगा, तो because of that, that will come down. That is increase in the shearing strength. Then transitory earth stress, that is endogenic process. Usually earthquake happens हो गया, blast हो गया, अभी एक अनस्टेबल लैंड है ये, तो यहाँ ऐसा फ्रिक्शन के वजह से यहाँ बर्थ को चीज मटेरियल है, तो इसका तो हिला देगा, इस एरिया को पूरा हिला देगा, तो क्या होगा, ये पूरा चीज नीचे जल्दी नीचे आ जाएगा। दैट इज अर्थक्वेक है, ब्लास्ट है, ऐसा कुछ कर दिया है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसिटरी अर्थ स्ट्रेस। पहले तो ऐसा कुछ भी चीज नहीं है, जो एरिया था दैट इज अनस्टेबल था बिकॉज ऑफ द मूवमेंट, जो हिलाने से वो एरिया से जो भी मटेरियल है वो नीचे आ जाएगा। सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच इंक्रीजेस द शीयरिंग स्ट्रेंथ। देन फैक्टर्स व्हिच डिक्रीजेस द शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो फ्रिक्शनल फोर्स को जो कम करता है वो फैक्टर्स है। फर्स्ट वन इज वेदरिंग एंड अदर फिजियोकेमिकल रिएक्शंस। जो पत्थर है यहाँ फ्रिक्शन था इसका, तो क्या हो गया, ये इरोड वेदरिंग से ये इसका ये एरिया को ये वेदरिंग से डिसइंटीग्रेट कर दिया, तो क्या होगा, ये ऊपर का जो पोर्शन है वो नीचे आ जाएगा। सो दैट विल डिक्रीज द फ्रिक्शन। ये पत्थर को डिसइंटीग्रेट कर दिया है वेदरिंग से, तो ये कोलाइड होकर नीचे आ जाएगा। सेकंड, चेंज इन द इंटरग्रैनुलर फोर्स ड्यू टू वाटर कंटेंट। तो हाइड्रेशन के बारे में हम कल बोल दिया है, ये क्या है, इसके अंदर जो पानी गुजरेगा एंड विद पानी इसका तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो ये क्या होगा, नीचे गिर जाएगा इस एरिया में। देन चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिसिस भी बोल दिया है, जो पानी अंदर घुसेगा इफ इट इज इन केमिकल वेदरिंग कल बोल दिया है, तो क्या होगा, पानी अंदर घुसेगा बिकॉज ऑफ केमिकल चेंजेस। वो पानी से जो केमिकल्स पानी जो केमिकल लेके आ रहे हैं एंड मटेरियल विद इन दैट रॉक आल्सो वो इंटरैक्ट करेगा एंड इट विल क्रिएट ए न्यू मटेरियल, न्यू कॉम्पाउंड बन जाएगा, तो क्या होगा, वो पत्थर का स्ट्रक्चर चेंज होगा एंड दैट विल आल्सो रिजल्टेड इन lessening the frictional force and the material will fall down. Then organic factors, अभी एनिमल्स फ्लोरल एंड फॉनल एक्टिविटी हम बोल दिया है वेदरिंग के टाइम में, फिजिकल वेदरिंग। अभी क्या होगा, अभी कुछ बरोइंग एनिमल्स है लाइक रैट है, ये सब नीचे जाएगा और मिट्टी को उड़ा देगा, तो क्या हो गया, उधर एरिया तो अनस्टेबल हो गया, वो जो एरिया, तो इसका फ्रिक्शन कम हो गया है और वो नीचे गिर जाएगा। सो दीज आर द मेजर फैक्टर्स व्हिच डिक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। जो मटेरियल का स्ट्रेंथ, शेयरिंग स्ट्रेंथ, वो वही कम कर देगा। एंड ये जो हो गया मास वेस्टिंग डायरेक्ट, अभी इसमें पानी का कुछ ज्यादा काम नहीं है, आइस इसका तो कुछ काम नहीं है, बट आई सेड जो वेदरिंग डेनुटेशनल एजेंट्स है, दे हैव द एबिलिटी टू एक्सेलरेट कर सकता है ना, ये तो ट्रिगर कर सकता है। अभी लैंडस्लाइड होने का, अभी हमारे रास्ता पे लैंडस्लाइड होगा, ये कैसे होगा, जो पहले जब बारिश नहीं था उसी टाइम में भी वो उधर स्लोप था, उसका तो कुछ स्लाइड नहीं हो रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ द इंट्रूशन ऑफ वाटर उसका वेट ज्यादा हो गया है एंड देयर इज कोल्यूशन, तो वाटर ज्यादा हो गया, वेट ज्यादा हो गया, तो ये नीचे गिर गया है, तो ऐसा ट्रिगर कर सकता है। सो मेजर देयर आर सर्टेन ट्रिगरिंग फोर्सेस, the major triggering forces are, one is rapid snow melt, तो जल्दी स्नो मेल्ट हो गया, बहुत ज्यादा पानी विद इन शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा रैपिड स्नो मेल्ट होने से, तो वो पानी जल्दी गुजरेगा, तो जो वेदर्ड मटेरियल है उसका जल्दी नीचे लेके जाएगा। सो दैट इज वन, दैट इज रैपिड स्नो मेल्ट।
सेकंड वन इज फ्रॉस्ट हीविंग। ये याद रखना है, ये टर्म फ्रॉस्ट हीविंग। ये तो ऐसा है, अभी एक ठंडा रीजन था, तो ऐसा एक रीजन है, तो इसके नीचे पानी था, इसके नीचे पानी था, तो ये क्या हो गया, बिकॉज ऑफ कूलिंग ये आइस हो गया। आइस होने से इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो इट विल पुल दिस, ये एरिया जो ऊपर वाला एरिया है, लेट इट बी ए स्लॉप, ऐसा एक स्लॉप था, तो स्लॉप के नीचे पानी था, पानी कूल हो गया तो इट विल स्टार्ट पुल, तो इसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ऊपर वाला जो सरफेस है इसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा, एंड ये तो आई से नीचे आ जाएगा, ये जो एरिया है जो आई से नीचे आ जाएगा। सो दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इज हैपन, दैट काइंड ऑफ मूवमेंट वी यूजुअली से इट एज फ्रॉस्ट हीविंग। इट विल, इसका तो ऊपर ये लैंड जो सरफेस का वो ऊपर वाला लैंड को ऊपर कर देगा, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन, बिकॉज ऑफ द कन्वर्शन ऑफ वाटर टू आइस, वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाने से ये ऊपर वाला ये एरिया को भी ये ऊपर लेके जाएगा। दैट काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रॉस्ट हीविंग। देन इंटेंसिव रेनफॉल, दैट्स वी आर ऑलवेज ऑब्जर्विंग। इंटेंसिव रेनफॉल से ये तो कैसे होगा, तो उसका वेट ज्यादा होगा, जल्दी विद इन शॉर्ट टाइम बहुत ज्यादा पानी आएगा, तो बहुत ज्यादा पानी से वो मिट्टी है उधर, वो नहीं है तो जो डेब्रिस है उसका वेट बढ़ जाएगा, एंड इट विल कोलाइड वेरी इजीली। दैट इज अनदर triggering force. Then earthquakes and volcanic eruptions. Earthquakes and volcanic eruptions. Volcanic eruption के टाइम में और earthquake के टाइम में क्या होगा, जो लैंड है, जो सामने वाला लैंड है वो हिलेगा, तो इफ इट इज शेकिंग व्हाट हैपन, जो अनस्टेबल लैंड है वो जल्दी नीचे आ जाएगा, अनएक्सपेक्टेडली इट विल फॉल डाउन। सो दैट इज हाउ द earthquake and volcanic eruptions have triggers the मास मूवमेंट। इसमें ये तो याद रखना है, वॉल्केनिक मास फ्लो इसका लहर, ये हम याद, क्योंकि ये पूछ सकता है लहर, व्हाट इज अ लहर, ये पूछ सकता है। अभी वो जब वॉल्केनो पड़ा है उसी टाइम में वो एक तो कौन होगा, वो क्रेटर होगा, उसके अंदर वेंट होगा, वो वेंट से मैग्मा कम आउट, तो ये तो नीचे जाएगा, मट जैसा ये तो नीचे आ जाएगा, जो यहाँ का जो मिट्टी है सब मिला के ये तो नीचे आएगा। So that kind of volcanic mud का flow है, that we will usually say it as लहर, ये ना याद रखना है। Then storm waves, storm waves जो severe waves है with that also includes sand particles, जो sand particles से जो waves आता है, so that kind of movement will also trigger the mass movement. Then rapid stream erosion, rapid stream erosion, intensive rainfall, rapid snow melt, ये सब क्या है, जल्दी पानी आ जाएगा एक जगह पे, within short period of time there will be huge amount of water, so that will cause erosion, वो एरिया को पूरा erode करके नीचे आ जाएगा। So that is also a triggering force, rapid stream action. And finally, but the most active agent, that is human activities. ओवर ग्रेसिंग हो गया, एक जगह था ऐसा स्लोप एरिया था, यहाँ बहुत कुछ ट्रीज था, ये तो बहुत ग्रासेस था, ये सब बिकॉज ऑफ ग्रेसिंग एंड डिफॉरेस्टेशन ये एक्सपोज हो गया, ये तो एरिया एक्सपोज हो गया, तो क्या होगा, यहाँ इजिली देयर विल बी मास मूवमेंट होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। देन कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, अभी कुछ बनाने के लिए क्या, अभी एक स्लॉप है तो इधर एक घर बनाना है, तो क्या करेगा, यहाँ से मिट्टी ले आएगा एंड यहाँ घर बना देगा, तो क्या होगा, यहाँ का जो मिट्टी है, यहाँ का जो एरिया है, इसको तो स्टैंड करने के लिए कुछ चीज नहीं है, तो कोलाइड होकर नीचे आ जाएगा, जो घर बना है उसके ऊपर ही आ जाएगा, जस्ट लाइक द पिक्चर आई हैव शोन अर्लियर, द सेम वे दैट्स हैपेंड हियर। यहाँ का जो एरिया है, यहाँ जेसीबी लेकर वो लोग एग्रीकल्चर करने का कोशिश किया है, तो यहाँ का मिट्टी अंडर कट हो गया है, तो ये पूरे ऊपर का मिट्टी नीचे आ गया एंड दे हैव मूव्ड, ये पूरा एरिया में ये मूव होकर गया, तो बहुत आदमी लोग मर गया है बिकॉज ऑफ दिस सेम। So that is how the human activities
will affect. So these are the major triggering force. ये भी पूछ सकता है multiple descriptive question में पूछ सकता है. What are the triggering forces for mass movements? So rapid snow, intensive rainfall, earthquakes and volcanoes, storm waves, rapid stream erosion, and human activities. Then preventive measures. अभी ये mass movement होगा, and don't think that only because of humans the mass movement is happening. Mass movement is naturally occurring a phenomena, naturally occurring phenomena है. There it should be happen. अभी जो हम बहुत बार बोल दिया है, एक फ्लैट लैंड होगा बिकॉज ऑफ एंडोजेनिक फोर्स, या फ्लैट लैंड को उड़ाकर तो ऐसा वाला हिली रीजन, प्लेटोस, प्लेन्स ये सब बन जाएगा, प्लेटोस ये सब बन जाएगा. तो क्या हो गया, एक्सोजेनिक फोर्स आज करेगा एंड दे वांट टू रिड्यूस दिस फ्लो. ये जो उड़ गया ना वो लैंड को फाइनली ऐसे लेवल करना है. दैट इज द फंक्शन ऑफ द एक्सोजेनेटिक फोर्स. जो एंडोजेनिक फोर्स से जो लैंडफॉर्म बना रहे उसको तो लेवल करके एंट्रोपी में लेके आना है, नहीं ये तो प्लेन रीजन में बना है. दैट इज ब्रिंग अप टू सी लेवल. दैट इज व्हाट वी यूजुअली से, सी लेवल तक लेके आना है. सो दिस लैंड मास मूवमेंट इज द प्रोसेस. ये तो ऐसा करने का मास मूवमेंट ऐसा करने का एक तो तरीका है, नेचुरल तरीका है. तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन द ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन इंटरफेयर, ये तो धीरे से अभी 10 साल से पहले बाद में होनी चाहिए था ये लैंडस्लाइड, लेकिन बिकॉज ऑफ आवर इंटरफेरेंस ये क्या होगा, 10 साल ये तो अभी हो जाएगा, 10 साल के बाद में जो आना था वो अभी करेगा. सो मैन विल एक्सेलरेट द मास मूवमेंट्स. ये ऐसा नहीं है मैन के वजह से ही ये हो रहा है, ऐसा नहीं है. दैट विल बी डन बाय द नेचर and that will be a slow process, but because of the intervention of humans that happens very quickly. So there are certain measures to prevent. It is not possible to prevent, but to reduce the intensity of the mass movement. Mass movement का intensity कम करने के लिए, इसको तो धीरे करने के लिए, to slow down the process, we have certain measures. Let's see what are they. First one is steep slope can be covered, sprayed with concrete cover and with a wire mesh to prevent the rock fall. ऐसा है, ऐसा एक स्लोप है तो क्या करेगा, इसके ऊपर एक तो कंक्रीट कवर बना सकता है. तो फर्स्ट जो भी आता है इरोशन आता है तो इस कंक्रीट कवर में भी आ जाएगा. सो दैट इज फर्स्ट काइंड ऑफ मेजर्स. तो स्लोप में जो भी नीचे का एरिया है that will be covered with the help of this concrete cover. concrete cover से तो cover कर सकते हैं. So there will be less weathering. बाद में क्या होगा, as the nature is very powerful, they can even erode this particular concrete. ये भी सालों बाद ये भी erode करके ले सकता है. अभी जैसे हमारा रोड है, जो भी concrete कर दिया, टार कर दिया, तो बाद में जाएगा, जरूर जाएगा, but it will take time. तो नीचे का जो एरिया है that will can be prevent. Then retain wall or retaining walls, that is retain wall we will use. Yes, steepness slopes दोनों से steep slopes means ऐसा एक ही वोट, मतलब एक ही जो स्लोप हो रहा है उसको बोलते हैं ना स्टीप स्लोप. नहीं, वो वर्टिकल स्लोप्स है ना, ऐसा वाला. अभी ये टॉप है, ये बॉटम है, तो ऐसा वाला वर्टिकल स्लोप्स है ना जी, वो स्लोप को वी विल से इट स्टीप स्लोप्स. अभी ये स्लोप ऐसा धीरे से है तो वी विल से इट जेंटल स्लोप. ओ जेंटल, ओके ओके, अंडरस्टूड. जी. ओके, देन रिटेनिंग वॉल्स कुड बी, रिटेनिंग वॉल कर सकता है. ऐसा है, एक स्लोप है तो क्या करेगा, ये प्रिवेंट करने के लिए यहाँ हम वी विल मेक कंक्रीट वॉल्स बनाएगा. इफ यू लुक, अभी ईटानगर से नाहरलगुन जाते समय इफ यू लुक ऑन दिस स्लोप देयर विल बी कंक्रीट वॉल्स बना दिया है वो फुट एरिया में. दिस इज टू प्रिवेंट स्लोप का स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए वी कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ रिटेनिंग वॉल्स. इफ द स्लोप इज मेड ऑफ
highly fractured rock balls may be emplaced. ऐसा है, जो रॉक है वो फ्रैगमेंटेड है तो क्या करेगा, जो सॉलिड कॉन्क्रीट रॉक है इसके अंदर वो रॉक में ये जो फ्रैगमेंटेड रॉक को बोल्ट करके देख देगा. I will show you these pictures, then you can understand easily, and this will help to prevent the failure. वो कर सकते हैं. तो नहीं, ये तो अभी आप लोग आते समय देखा होगा, जो भी एरिया है उधर बड़ा बड़ा पत्थर नीचे देख सकता है रोड में. दिस इज बिकॉज ऑफ द रॉक फॉल. क्या रॉक फॉल क्या कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द फ्रैक्चर्ड रॉक है जो फॉल होता है बाद में. तो ये जो फ्रैक्चर्ड रॉक है वो रॉक को, जो हार्ड रॉक उसके अंदर है विच इज नॉन वेदर्ड, वो रॉक में वी विल बोल्ट इट, वी विल पाइल इट. Then drainage pipe could be inserted into the slope to more easily allow water to get out. ऐसा है, आई एम सो बोल दिया है, अभी स्लोप में पानी घुसेगा तो ये मिट्टी का वेट ज्यादा होगा. Why? Because there will be, वो सैचुरेट होगा, वो मिट्टी पानी को अब्सॉर्ब करके रख देगा. क्यों? ये प्रिवेंट करने के लिए वी विल मेक पाइप्स. ऐसा स्ट्रेट पाइप करेगा तो क्या होगा, पानी उस पाइप से नीचे जाएगा. इट विल नॉट अफेक्ट द सोइल बीनीथ. वो सोइल में नहीं आएगा, उसके पहले वो जल्दी रन ऑफ होके नीचे जाएगा. सो दैट कैन आल्सो बी डन. Then power strip slope could be graded. We know about the terrace farming setup ना. ऐसा steep slope है, ऐसा slope है तो क्या करेगा, ऐसा जल्दी आ जाएगा. ये प्रिवेंट करने के लिए we will make the slope ऐसा स्टेप बाय स्टेप टेरेस करके लेके जाएगा. सो दैट कैन बी ग्रेडेड टू रिड्यूस द स्लोप. स्लोप का वो ग्रेडियंट है उसको तो कम कर सकता है. We can't say that this will prevent the mass movement, but it can reduce the intensity and this can slow down the process. In mountain valleys subject to mud flows, plants can be made to rapidly lower levels of water in human. ये तो ऐसा है, मड फ्लो ज्यादा हो नहीं उधर, क्या हो कि देयर विल बी मोर वाटर है तो क्या होगा, इसको प्रिवेंट करना है. मड फ्लो कैसे होता है, स्लरी में हम बोल दिया है जो वेट है साथ में फास्ट मूवमेंट है, दैट इज मड फ्लो. ये प्रिवेंट करने के लिए वी वांट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल देयर. जो पानी उधर आता है उसको तो जल्दी कैसे लोअर करेगा, वो मेथड को अडॉप्ट करना होगा इन वैली, माउंटेन वैली रीजन. Then planting of trees, जो trees and vegetables on the slope, vegetation on the slopes. जो slopes है उसमें ज्यादा trees means ऐसा छोटा trees नहीं है जिसका रूट बहुत अंदर तक घुसेगा, ऐसा वाला trees को प्लांट करना है. तो क्या होगा, that will hold the soil. जो soil है, weathered soil है, उसको तो वो hold करके उधर रख देगा. ऐसे वाला trees. That should be tree with deep root होनी चाहिए. Then proper monitoring. जो एरिया है जहाँ लैंडस्लाइड प्रोन जोन है उसको तो कंटिन्यूस मॉनिटर करना है. अभी यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ इंटरवेंशन हो रहा है, नहीं तो उसका मूवमेंट कुछ ज्यादा हो रहा है उस रीजन में, ये सब कंटिन्यूस मॉनिटर करना है. सो दीज आर दी मेजर प्रिवेंटिव measures that we want to adopt. If you look here, अभी वॉल के बारे में हम बोल दिया है, इस फर्स्ट स्टेप में रिटेनिंग वॉल के बारे में बोल दिया है. तो दिस आर रिटेनिंग वॉल. जो स्लोप है ये प्रिवेंट करेगा, ऐसा वॉल्स बना के. तो मेश वो दिस इज आल्सो रिटेनिंग वॉल है तो इसमें मेश भी दिया है. तो क्या होगा, वो स्लोप थोड़ा स्टेबल हो जाएगा. बट इफ यू, अभी हम लोगों को खुद से पता है आते समय जो कंक्रीट वॉल है वो भी कोलाइड होकर नीचे गिरा होगा बहुत जगह पे, बिकॉज ऑफ दिस मास मूवमेंट होने से थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है, बट वी आर नॉट कैपेबल टू प्रिवेंट इट फॉर द होल टाइम. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है. एंड अभी वाटर स्लो डाउन करने के लिए वी कैन यूज चेक डैम्स. ऐसा वाला चेक डैम्स कर सकते हैं. तो पानी का यहाँ धीरे आ जाएगा, यहाँ फिर इधर आ जाएगा, तो फिर इधर आ जाएगा, तो वेलोसिटी कम होगा इसका, तो फिर ऐसा इरोशन भी इसका तो कम कर सकता है. देन टेरेस्ड फार्मिंग हम बोल दिया है. ग्रेड तो ऐसा वाला स्टीप स्लोप होगा. लुक हियर, यू कैन सी द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप. इसको तो ग्रेड करके इसका स्लोप कम कर दिया है.
स्टेप बाय स्टेप कर दिया है। तो टेरेस फार्मिंग हम लोग को पता है। देन बोल्टिंग, फ्रैगमेंटेड रॉक है तो ऐसा बोल्ट लगा के इसका तो वो हार्ड रॉक में फिक्स कर सकता है। सो दीज आर द मेजर प्रिवेंटिव फोर्सेस, preventive activities that we can be done to slow down the mass movement, not prevent its slowing down of the mass movement. Okay, that's it. आपको ये चाहिए ना वर्टिकल मूवमेंट्स, ये ना, इसमें कुछ नहीं है इसलिए तो हम नहीं दिया था, फिर भी हम ऐड करेगा। ओके जी सर, मतलब जो थोड़ा सा एक सिंगल वर्ड होता है ना, तो आप अपना वर्ड्स में थोड़ा कुछ लिख देने से हम लोग को बात में भी समझ में। अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू। ओके, कुछ डाउट है इसमें? हाँ बोलिए ना। Sir, actually, at 5, I have a GS class also, na. So I missed that class, na. So sir, आपको और वो GS का जो आपका इंस्टीट्यूट का जो टीचर है, उसको आपको आप दोनों को बात करना चाहिए क्या? देखो टाइमिंग इसमें जो ना कॉलेज हो रहा है ना सर, ये ना असली में ये मेरा कंट्रोल में नहीं है, ये पंकज सर है ना, पूरा सारे कंट्रोल कर रहे हैं ना। हम ज्योग्राफी पढ़ाता है वो बोलने से वही है। अच्छा। तो ये क्लास का पूरा कंट्रोल सर। इंस्टीट्यूट आर द सेम ना सर? क्या है? Isn't it? Your institute are same ना? ये ESA जो है वो वही से तो वो GSP तो वही से कर रहा है तो वही तो मैंने सेम होगा, लेकिन इसके बारे में हमको ज्यादा आइडिया नहीं है। हमसे बोला है 4:30 को ऐसा ज्योग्राफी का क्लास लेने के लिए, और कुछ नहीं है इसमें ना, हमको ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है इसको। Actually, I have a class in 5 ना, so actually I am 20 minutes late. It would be better if you can convey the same to Pankaj sir. Okay sir, okay sir. Okay, thank you sir. Okay, thank you. Okay, we can meet on Monday. Okay, tomorrow and after tomorrow there is no class. Okay, fine. जी, Okay sir. जी, ओके, थैंक यू सर। Okay. गुड नाइट सर। Good night.